یعنی اس بات سے حفاظت کرتے ہیں کہ اپنی جنسی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کوئی ناجائز طریقہ اختیار کیا جائے۔ اس میں ہم کتنے پانی میں ہم لوگ اس آیت کو لے کے آپ سب کے سامنے آ گیا ہوگا۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھے صرف دو باتوں کی ضمانت دے دے، صرف دو چیزوں کی مجھے ضمانت دے دے، ایک اپنی زبان کی حفاظت کی اور ایک اپنے شرمگاہ کی حفاظت کی، تو اس شخص کے لیے، اس امتی کے لیے میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے۔ اور اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ والذین هم لفروجہم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی خواہشات کو ناجائز طریقے سے پورا نہیں کرتے۔ یہ ان مومنوں کی بات ہو رہی ہے کہ جن مومنوں کہ جو جنت الفردوس کے وارث بننے والے ہیں اور جن میں یہ کوالٹیز پائی جاتی ہیں۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ دھجیاں اڑا رہے ہیں کہ نہیں اڑا رہے اس آیت کا؟ جب دل چاہا جس سے بات کر لی، کوئی روک ٹوک نہیں۔ جب دل چاہا کسی سے ہینڈ شیک کر لیا، کوئی ڈر خوف نہیں۔ جب دل چاہا کسی کے گھر منہ اٹھا کر چلے گئے اور اپنی آنکھوں سے جی بھر بھر کے نامحرموں کو دیکھ لیا، اپنے گھر واپس آ گئے، کنٹرول نہیں ہوا، ان سے مل بھی لیا اور کنٹرول نہیں ہوا، پتہ نہیں کہاں سے کہاں بڑھ گئے۔ نفس کو بالکل کھلا چھوڑا ہوا ہے، نفس نے رسیاں ڈالی ہوئی ہیں، جہاں یہ لے کے جا رہا ہے وہاں ہم جا رہے ہیں۔ شرمگاہوں کی حفاظت کیسے ہوگی پھر؟ ایک چیز کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ ان چیزوں سے بچا جائے کہ جو اس چیز کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ جب ہم لڑکا لڑکی آپس میں گیدرنگ کریں گے، آپس میں گپے لڑائیں گے، آپس میں ہینڈ شیک ہوگا، برتھ ڈے پارٹیاں ہوں گی، گفٹ ایکسچینج ہوں گے، آئی لو یو شائی لو یو چل رہا ہوگا، مجھے بتائیں کیسے ہم اپنی قیمتی چیز کی حفاظت کریں گے؟ کیسے ہم اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں گے؟ یہ تو شیطان ہے۔ شیطان کا تو سب سے بڑا تیر ہے، وہ تو انسان سے کروانا ہی یہ چاہتا ہے کہ بس کسی طرح انسان سے زنا ہو جائے، کسی طرح ایک نامحرم دوسری نامحرم کو ٹچ کر لے۔ یہ شیطان کا سب سے بڑا تیر ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس چیز میں انسان بہت زیادہ کمزور ہے، پھسل جائے گا، جتنا بھی برداشت کرے گا اس سے نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ جس کے لیے آسان کر دے اس کے لیے آسان ہے۔ جس کے دل میں تقویٰ ہوتا ہے اس کو ان چیزوں کی ٹینشن نہیں ہوتی، جس کی نظریں پاک ہوتی ہیں، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، جس کے کان زنا سے پاک ہوتے ہیں، جس کے ہاتھ زنا سے رکے ہوئے ہوتے ہیں، جس کی ٹانگیں زنا کی طرف جانے سے رکی ہوتی ہیں، اس نے اپنے نفس پر قدم رکھا ہوتا ہے، اللہ کے لیے اپنے نفس پر قدم رکھا ہوتا ہے، غلط راستوں کو جس نے چھوڑا ہوتا ہے، یقین کریں اس کے لیے زنا سے بچنا بہت آسان ہے، بہت زیادہ آسان ہے۔ لیکن ہم خود ہی اپنے آپ کو زنا کے حوالے کرتے ہیں، یقین کریں ہم خود اپنے آپ کو زنا کے حوالے کرتے ہیں۔ اللہ کی مرضی اس میں شامل نہیں ہے۔ اللہ نے واضح آیت میں آپ کو بتا دیا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، زنا کے قریب بھی مت جانا، یہ بہت 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 زیادہ بے حیائی کا کام ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ جب ایک لڑکا ایک لڑکی جب آپس میں زنا کی کوئی بھی ایکٹیویٹی کر رہے ہوتے ہیں تو یہ مومن نہیں رہتے، یہ مسلمان نہیں رہتے، ان کا ایمان ان سے علیحدہ ہو جاتا ہے۔ جب دو نامحرم آپس میں ملتے ہیں تو جب تک یہ ایک دوسرے کے جسموں سے لذت اٹھا رہے ہوتے ہیں تب تک ان کا ایمان ان سے علیحدہ ہو جاتا ہے۔ تو سوچیں اگر اس حالت میں کسی کو موت آ گئی، لذت تو 5 سیکنڈ 10 سیکنڈ 20 سیکنڈ 2 گھنٹے 3 گھنٹے کتنا انجوائے ہوگا، ختم ہو جائے گا، لیکن لیٹس سپوز اگر اللہ نے آزمائش میں تمہیں گرفتار کر دیا، نہیں سوچتے ہم یہ۔ یقین کریں فرماتے ہیں کہ زنا ایک بہت بڑا گناہ ہے، بہت زیادہ بڑا گناہ ہے، یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اسلام میں زنا کی سزائیں بھی ہیں۔ دیکھو اتنا سخت گناہ ہے، میری بات سنو، جھوٹ بولو، جھوٹ پر اللہ نے کوئی سزا نہیں رکھی دنیا میں۔ غیبت کرو، غیبت بھی بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ نے کوئی سزا نہیں رکھی غیبت کرنے والے پر کہ اسے پکڑو چکڑو مارو گھوسے مارو یا جو بھی کرو، بس کہا کہ توبہ کرو۔ اس کے علاوہ چوری کرنا، اچھا اس کی تو سزا ہے۔ اس کے علاوہ کسی سے لڑائی جھگڑا کرنا، اس میں بھی۔
लेकिन जिना ऐसा गुनाह है कि जिसके बारे में अल्लाह फरमाते हैं कि इसे फौरन दुनिया में ही अजाब दो, दुनिया में ही इसको सजा दो, 100 कोड़े लगाओ। अगर इसने शादी नहीं की, अगर लड़का है या लड़की है, अभी तक निकाह नहीं हुआ इनका और इनसे ये काम सरजद हो जाता है, तो इनको पकड़ो और सबके सामने इन्हें 100 कोड़े लगाओ। और इन कोड़े लगाते वक्त इन पर रहम भी ना करो। ये कौन कह रहा है? रहमान, जो सबसे ज्यादा रहम वाला है, जो सबसे ज्यादा करीम है, जो अपने बंदों से बहुत प्यार करता है, जिससे अपने बंदे का दुख बर्दाश्त नहीं होता। और वो दुख, दर्द, तकलीफें जो अपने गुनाहों की वजह से इंसान अपने आप पर लाता है, अल्लाह ही फिर उसको दूर करता है। ऐसा रब कह रहा है कि इन पर रहम नहीं करना, नहीं तो कल फिर करेंगे, फिर करेंगे, फिर करेंगे। और जो शादीशुदा है और उससे ऐसे काम हो जाए तो अल्लाह मतलब उस पर इतना गुस्सा होते हैं कि देखो, जैसे कि ये जमीन जो है ना, उसे अब अपने ऊपर बर्दाश्त ही नहीं करना चाह रही होती। अल्लाह ने उसके लिए हुक्म जारी किया है कि इसे पत्थर मार मार के हलाक कर दो, मार दो इसको। हाँ, जब ये दोनों सजाएं होती हैं तो फिर जाहिर सी बात है दुनिया में ही लज्जत तो थोड़ी थी, 5 सेकंड की थी, सजा बड़ी, जिंदगी से हाथ धोना पड़ा इस इंसान को। हम क्या कर रहे हैं? गायें बकरियों की तरह एक दूसरे से मिल रहे हैं, गप्पे लगा रहे हैं, हाँ हाँ ही चल रही है, गिफ्ट एक्सचेंज हो रहे हैं, पार्टियों पे जाया जा रहा है। अल्लाह बचाए इन चीजों से यार, अल्लाह बचाए। अल्लाह फरमा रहे वल्लज़ीना हुम लिफुरूजिहिम हाफिजून, जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। तो मुझे बताओ, शर्मगाहों की हिफाजत हम कैसे करें जब हमारी यूनिवर्सिटियों में एक ही बेंच पर 7 लड़की 7 लड़का, जैसे ही कोई फ्री टाइम मिलता है, फ्री पीरियड होता है, तो लड़का जो है बगैरत ले जाता है एक लड़की को कैफेटेरिया में, पिलाता है चाय कॉफी। मकसद उसका क्या होता है? लड़की बेचारी नहीं जान रही होती, अच्छी अच्छी बातें कर रहा होता है, भुला रहा, फिसला रहा होता है उससे। लड़का समझ रहा होता है शायद ये लड़की बहुत बेवकूफ है, मेरी बातों में आ रही है, बस ये अपने आप को मेरे हवाले कर देगी, 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में ये मेरी बाहों में होगी। इसके लिए रात दिन सोचता है आज उससे क्या बात करनी है, आज उसे कहां लेकर जाना है, आज कौन सी ड्रेसिंग करनी है, आज मैंने क्या बातें करनी है। मकसद क्या होता है? जिना। मकसद क्या होता है? इसकी इज्जत उतारना। ये प्यार व्यार के झांसे देकर जो लड़कियों के साथ और लड़कों के साथ जो हो रहा है ना, ये लड़का लड़की आपस में एक दूसरे से नहीं करवा रहे, ये शैतान करवा रहे हैं, लेकिन इनको अकल नहीं है। ये अपने आप को शैतान के हवाले कर देते हैं, फिर शैतान जहां चाहे ले जाता है इनको। अरे भाई, अल्लाह की मानो, हुदूदों का ख्याल रखो, नजरों को झुकाओ, नहीं झुकाने होता। क्यों? तुम्हारे नबी तो कह रहे हैं कि जब तुम्हारे सामने कोई नामहरम गुजरे और तुमने अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह की खौफ में उस नामहरम को देखते ही अपनी नजरों को झुका लिया, तो उसी वक्त तुम्हारे सारे गुनाह माफ हो जाएंगे और जन्नत में तुम्हारे लिए एक हूर पैदा कर दी जाएगी जो तुम्हें डेफिनेटली मिलेगी। इस बात पे यकीन नहीं आता तुम्हें? ये तुम्हारे इल्म में ये बात नहीं थी? ऐसी बातें तब क्यों नहीं आती? फरमाते हैं कि आंखों का, हर इंसान के मुकद्दर में जिना का कुछ हिस्सा लिखा है, ये डेफिनेटली करेगा। और फिर साथ ही ये फरमाया कि आंखों का जिना नामहरम को देखना है, कानों का जिना नामहरम की गुफ्तगू सुनना है, अट्रैक्टिव बातें सुनना है, तारीफ सुननी है। ओ जी, आप तो बड़ी प्यारी लग रही हैं, आपके बाल बहुत लंबे हैं, हाँ, आपका हुस्न माशाल्लाह ऐसा है वैसा है, आपके बोलने का अंदाज बहुत अच्छा है, आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छा है। और वो प्यार के 2 झूठे 3 झूठे अल्फाज जो बहुत ज्यादा फेमस हो गए, मैं तो जबान में भी नहीं जाना चाहता इन चीजों को, वो भी बोलते हैं। तो ये सुन रही है ना कानों से। इस तरह अगर एक लड़की बोल रही है तो लड़का सुन रहा है, तो ये जिना कर रहे हैं कानों का, इनसे जिना हो रहा है जो इनकी किस्मत में लिखा है। अब हम लोगों में से बहुत सारे लोगों ने आंखों का जिना कर लिया, कानों का जिना कर लिया। इसी तरह मुंह का भी जिना होता है, जबान का भी जिना होता है। एवी फ्रैंक होना, एवी ताल्लुकात बढ़ाना। ओ भाई, वो किसी पराए घर की लड़की है, तू किसी पराए घर का लड़का है, उसके माँ बाप उसे यहाँ स्टडी के लिए भेज रहे हैं, इतना ट्रस्ट करके उसकी यूनिवर्सिटी की फीसें भर रहे हैं, इतना पैसा लगाकर वो इनको हॉस्टल्स में सेटल करके, हॉस्टल्स में रख के इनको पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, 5 साल तक इनको अफोर्ड कर रहे हैं। तू इन चीजों को नहीं देखता, तुझे ये चाहिए कि बस ये लड़की मेरी दोस्त बन जाए, मेरे ग्रुप में आ जाए, मेरे साथ थोड़ा सा फ्रैंक हो जाए, जब भी इसे कॉल करूं
गाड़ी नीचे खड़ी हो, ये आके बैठ जाए उसमें, बाइक नीचे खड़ी हो, बस मेरे पीछे चिपक के बैठ जाए। तू उसकी फैमिली की फीलिंग्स को समझता नहीं है उस वक्त, कि एक लड़की कितनी बेबस होती है जब वो यूनिवर्सिटी लाइफ में होती है। वो खुद तो नहीं कमा रही होती, वो खुद तो अफोर्ड नहीं कर रही होती अपने सारे खर्चे। ये जो लाखों की फीसें होती हैं, ये जो लाखों के रेंट होते हैं, ये जो आने जाने का जो खर्चा होता है, ये जो घर आना जाना होता है, ये कौन अफोर्ड कर रहा होता है? एक बाप जो कि हलाल तरीके से मेहनत मजदूरी करके उस बेटी को पढ़ा रहा होता है, और तू इतना नहीं सोचता कि बेचारी है यार, तरस खाने के लायक है। हमें तो ये कहते हैं उस्ताद जी कि जो लड़कियां जॉब करती हैं, जो लड़कियां घरों से दूर होकर स्टडीज के लिए आई होती हैं, उनकी ज्यादा इज्जत किया करो, अपनी बहनों से भी ज्यादा उनकी इज्जत किया करो। कहो क्यों? वो एक पराये मुल्क में अकेली तने तनहा अपने लिए स्ट्रगल कर रही होती है, या स्टडी के मामले में या जॉब के मामले में। हम पर ज्यादा फर्ज है कि हम उनको ज्यादा इज्जत दें, लेकिन हम भेड़िए बने होते हैं, हम नफ्स के भूखे हैं, हमें लज्जतें चाहिए। हम जब देखते हैं ना कि हमारे दोस्तों के पास 6-6 लड़कियां हैं, तो मेरे पास क्यों नहीं है? तो हमें भी जब कहीं से मौका मिलता है ना, तो हम वो जाया नहीं होने देते। इज्जत, किसी लड़की को इज्जत बनाते वक्त हमारी टांगे टूटती है, लेकिन उसकी इज्जत को खराब करते वक्त सोचते तक नहीं है कि किसी की बेटी है यार, इस बाप ने बहुत मुश्किलों से इसको बड़ा किया होगा, जवान किया होगा, लोगों की नजरों से बचाया होगा। एक माँ ने अपनी बेटी को न जाने किन नखरों से, लाड प्यार से बड़ा किया होगा। एक भाई यार, भाई, एक नौजवान भाई जिस तरह अपनी बहन की हिफाजत करता है, उफ, समझ नहीं सकते आप लोग। एक भाई को हमेशा ये फिक्र रहती है कि मेरी बहन अकेली जा रही है, कोई इस पर नजर ना दौड़ा दे, कोई इसके साथ कोई गलत हरकत ना कर दे। सारी उम्र दुनिया के गलत रिवाजों से, गलत नजरों से उसको बचाता फिरता। एक लड़की के पीछे एक पूरी फैमिली की एक स्ट्रगल होती है, एक पूरी फैमिली की सोच होती है। और वो लड़की जब हमसे सिर्फ 10 मिनट के लिए फ्रैंक होती है, तो हम पता नहीं उसे कहां से कहां ले जाते हैं, बगैर सोचे समझे। तुम तो वैसे ही होगे, सेठ रहोगे, नवाब रहोगे, तुम्हारी इज्जत में कोई कमी नहीं आएगी, लेकिन तुमने सामने वाली लड़की, फूल जैसी लड़की को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। अब याद रखना, जिना कर लिया ना, बातों में आ गई वो, तूने छोड़ दिया उसे, निकाह के वादे किए, निकाह नहीं किया, कस्में खाई, सारी कस्में तोड़ दी। तू जब बातें कर रहा था और वो हंस रही थी, मान रही थी, तो ये समझ रहा था कि जैसे ये बेवकूफ है। अरे पागल, तू बेवकूफ है। वो तेरी बातों में इसलिए नहीं आ रही थी कि वो बेवकूफ है, बल्कि उसने तुझ पे अंधा ट्रस्ट किया था। उसे ये लगा कि हाँ ठीक है, ये मुझे संभाल लेगा, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लेगा, ये सच्चा है, ये अच्छा है, ये सिंसियर है, ये लॉयल है, ये धोखा नहीं देगा, ये फला नहीं करेगा। हालांकि ये लड़की की गलती होती है, लेकिन वो ये गलती कर बैठती है दिल के हाथों मजबूर होकर। पीछे शैतान की फोर्स भी होती है, दीन से दूरी भी होती है। इस वजह से वो लड़कों की बातों में जब आ रही होती है ना, तो लड़कों तुम ये मत समझा करो कि वो ना समझ है, नादान है। यकीन करो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अलबत्ता तू जब उससे जिना करके छोड़ता है ना, तो तुझे तो तेरा मिशन पूरा हुआ दिखाई दे देता है, और उसे तू आजमाइशों के हवाले तो कर देता है। चलो कोई नहीं, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद वो ठीक हो जाएगी, भूल जाएगी सब कुछ, लेकिन बेटा तुझे बहुत बड़ी आजमाइश में गिरफ्तार करके जाएगी। ऐसी उलझन में डाल के जाएगी ना तुझे, कि तू जब अपनी बहनों को देखेगा ना, तो डरेगा कि कहीं कोई इसके साथ वैसा ना कर ले जैसे मैंने उसके साथ किया था। तू हमेशा इस डर और खौफ के साथ अपनी जिंदगी गुजारेगा। तू अपनी माँ को देखेगा ना, तो तू डरेगा कि मेरी माँ पे कोई अटैक ना कर दे। हाँ, इसलिए किसी की भी इज्जत के करीब जाने से पहले अपनी बहन को देख लो, अपनी बीवी को देख लो, अपनी बेटी को देख लो, अपनी माँ को देख लो। उसके बाद भी अगर तुम्हारा दिल जिना करने को चाहे, तो तुम्हारी बहन और उस लड़की में कोई फर्क नहीं है। अगर उस लड़की से जिना करने की हिम्मत है, तो बहन से करके देखना। नहीं, ये कैसी बातें कर रहे हो अली, ऐसे कैसे हो सकता है? जब ऐसे नहीं हो सकता तो वैसे भी नहीं हो सकता। वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशा।
जिना के करीब मत जाओ, ये बहुत बड़ी बेहयाई का काम है। नस्लें तबाह हो जाती हैं इससे, दिल का सुकून बर्बाद हो जाता है इससे, इंसान की जिंदगी खराब हो जाती है, तुम्हारा ईमान खतरे में पड़ जाता है। इस बात को क्यों नहीं समझते तुम? क्या मिलता क्या है इस जिना से यार? ऐसे ही लोगों को पागल बनाया हुआ है इस फीलिंग्स ने। अल्लाह हम सब पर रहम करे, अल्लाह हम सब पर रहम करे।